Hello children, this is online class and this is class 5 English course book New Learning to Communicate lesson 6 Delicious Buns. Children, already I have uploaded one video for the question answers and exercises part of this lesson. But so many students they have requested me and often they write in the comment box that they should know the story in brief, and that's why I just upload the video of the same lesson only for the explanation of this lesson. Okay, and I'm just explaining this lesson now, and the exercises and all the question answers already I have uploaded, so you just for the question answers and your exercises you will watch that video, and this video only for the story. Okay, and this is very funny story, and students already I have told you in the class I have already discussed. Now children, here in this story is very funny and humorous story where you know that every Saturday there was a policeman whose name was Mr. Jones, and he went to his sister's house. And what was the name of his sister? She was Mrs. Smith. Okay, and there was a sweet relation between brother and sister, Mr. Jones and his sister Mrs. Smith. Okay, and on Saturday, every Saturday, Mr. Jones went to her house, and Mrs. Smith, means Sister Smith, she loved very much her brother, and she baked some delicious buns for her brother, and she put some lots of the raisins and sprinkled sugar crystals on the top of the buns, and after all she put them on the window sill to cool. Window sill, that is the in the picture you can see, that is the window sill. चिल्ड्रेन, आप देखे होंगे जो विंडो होते हैं, विंडो खिड़की के नीचे का पोर्शन देखना, उसमें एक सेल्फ जैसा होता है जिसे लेज कहते हो. ओके, दैट इज LEDGE. जस्ट उसी सेल्फ के सामने ही जो नीचे का बॉर्डर होता है, विंडो का जो नीचे का बॉर्डर है, उसे हम लोग विंडो सिल कहते हैं. जस्ट उसके सामने में उस बांस को ठंडा होने के लिए वो रख देती थी. ओके, एंड आफ्टर ऑल सी वेंट टू द अपस्टेयर. नेचुरली that is the double stories building that we come to know from this line, that she went to upstairs. Okay, from the ground floor she went to the upstairs, first floor. During this time there was a thief. एक चोर था. इसको बहुत बड़ा डकैत हम लोग नहीं कह सकते हैं. he was not a dacoit, but he was a simple thief, and his name was Mr. Black. वो मिस्टर ब्लैक नाम का एक चोर था, और वो क्या चुराता था? मिसेस स्मिथ का केक चुराता था. ओके, सबसे पहले तो उन्होंने ये मिस्टर ब्लैक को जब पहला केक हाथ लगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा. धीरे धीरे वो हैबिचुएटेड हो गए और लगातार जो है ये मिसेस स्मिथ का केक चुराना शुरू कर दिए. वन सैटरडे ही क्विकली जम्प्ड ओवर द फेंस एंड टुक 2 ऑफ हर buns. द नेक्स्ट सैटरडे ही टुक 4.
2 के बाद 4 केक चोरी कर लिए। अब मिसेस स्मिथ को तो कुछ समझ में नहीं आया, तो कुछ तो बात ज़रूर है। एंड आफ्टर ऑल वन सैटरडे मॉर्निंग इट वाज 4 o'clock, पुलिसमैन जोन्स और इनका भाई, मिसेस स्मिथ का भाई जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो मिस्टर जोन्स, एंड ही वाज ए पुलिसमैन। Jones arrived. Mrs. Smith made tea for him. Then she went to fetch the plate of the buns. उलाने गए। Oh no, she cried out. I made at least 10 buns. 4 are missing. I'll catch the thief. चलो, अभी चोर मुझे पकड़ना है। Okay, students, that is the funny story. I hope that you have already read the story from the book, and this book is English quotes book, Learning to Communicate. Okay, Oxford University Press, and this is lesson 6. You must read the story. Okay, अब देखो बहुत मज़ेदार कहानी है। अगला सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे के लिए मिसेस स्मिथ इंतज़ार करती है, वेट करती है, जो मुझे चोर तो पकड़ना है। अब ये चोर कैसे पकड़ना है? मिसेस स्मिथ पुट ए स्ट्रॉन्ग मैजिक ग्लू ऑन 6 of her buns. द ग्लू स्पार्कल्ड लाइक शुगर। और वो जो ऊपर में जो ग्लू दिए, जिससे बहुत चिपचिपाहट था, चिपकने के लिए स्टिकी ग्लू, एंड ये ग्लू ऐसे दिख रहा था ताकि बहुत स्पार्कल कर रहा था, चमकदार, ताकि किसी को पता ना चले ये ग्लू है, ऐसा कुछ है, इस मैजिकल चीज़ है। दूर से लग रहा है ये कोई शुगर क्रिस्टल है। ओके, और जैसे विंडो सिल में वो रखती थी, ऐसे ही रख के चली गई। आफ्टर ऑल यू सी दैट स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी फनी दैट मिस्टर ब्लैक जम्प्ड ओवर द फेंस। जैसे आप देखते हो ना, चूहा पकड़ते हो और चूहा का ट्रैप जो होता है, उसके अंदर हम लोग रोटी रख देते हैं, ब्रेड रख देते हैं, बहुत अच्छे चीज़ रख देते हैं। ऐसा ही हुआ, ये मिस्टर ब्लैक वो बांस को देखकर फिर से दोबारा वो जंप करके फेंस पार करके आ गए, बॉर्डर पार करके अंदर आ गए। लेकिन हुआ क्या? took out a plate, but to his horror the buns stuck to his hand. He could not put them on the plate. प्लेट से जैसे ही केक्स को उठाए, अब वो हाथ में वो स्टिकी ग्लू ऐसे लगा हुआ था, हाथ के साथ वो चिपक गए। अब वो केक्स प्लेट में रख ही नहीं रह पा रहे थे। He couldn't put them on the plate. अब बेचारा बहुत डर गए। He was frightened. Goodness gracious, अब क्या होगा हे भगवान? What happened? He cried. He called out his goat, held out his hand. जोर जोर से चिल्ला रहे थे। And asked her to eat the buns. एक गोट को बुलाए, बकरी को, जी भाई तुम तो खा लो, मेरा बंस को खा लो हाथ से। लेकिन she ate the buns, but the sticky things was still there. बकरी केक खा गई, लेकिन वो स्टिकी जो चीज़ था ना, ग्लू, वो हाथ से तो छूट ही नहीं रहा है। बार बार साफ से हाथ धोने लगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, बट नथिंग हैपेंड। अब देखो, पुलिस चोर को पकड़ता है। ये मज़ेदार कहानी ऐसा है, चोर खुद जाके पुलिस को पकड़ लेता है। इस बीच में क्या होता है, वो सोचता है चलो मैं अपना सिस्टर के घर जाऊंगा और उनसे कुछ बात करेंगे। He decided to go to his sister for advice. As he was walking along the road, he met policeman Jones. और रास्ता में देखो पुलिसमैन जोन्स के साथ भेंट हो गया। ऐसे ही होता है, जिससे आदमी का डर रहता है वो डर सामने आ जाता है।
अब देखो मिस्टर ब्लैक के साथ क्या हुआ। जोन्स को देखकर गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, he said and held out his hand without thinking. To his horror, he found policeman's hand was sticking to his. उन्हें तो भूल गए कुछ समय के लिए जो मिस्टर जोन्स के साथ हम हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर लिए और दोनों का हाथ क्या हुआ आपको तो पता है। बोथ द हैंड्स वेर enclosed and stuck to each other, एक दूसरे से चिपक गए। द पुलिसमैन वॉज annoyed. लेट्स गो, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो हाथ को। लेट गो ऑफ माई हैंड, shouted angrily. I can't, I'm stuck to you and you are stuck to me. अब स्टूडेंट सबको पता है आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड। बोथ ऑफ देम they went to Mrs. Smith's house because Mr. Jones was going to there. वो तो वही जा रहे थे। बोले चलो चलो, लेट्स गो टू माई सिस्टर्स कॉटेज, शी विल हेल्प अस, ग्रोल्ड द पुलिसमैन। चलो वहाँ पर। मिस्टर ब्लैक तो कुछ कहने के लिए था ही नहीं। मिस्टर ब्लैक और मिस्टर जोन्स का ऐसा दोस्ती देखकर मिसेस स्मिथ बहुत सरप्राइज्ड हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बोले वाह वाह, क्या बात है। वेल वेल, आई डिडंट नो यू वेर सच क्लोज फ्रेंड्स। मुझे तो पता नहीं था तुम लोग का इतना गहरी दोस्ती है। आई एम नॉट हिज फ्रेंड, हर ब्रदर सेड एंग्रीली। नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये स्टिकी मैजिक। देखो हाथ में क्या लगा के रखा है, मेरे साथ हाथ इसका स्टक हो गए, चिपक गए। ही कैनॉट वॉश इट ऑफ। मिसेस स्मिथ को तो सब पता चला गया। ओ यू आर द थीफ, आई नो वेयर द स्टिकी मैजिक हैज कम फ्रॉम, यू हैव बीन स्टीलिंग माई बन्स। इसके बाद तो स्टूडेंट सबको पता है चोर पकड़ा गया। यू हैव बीन स्टीलिंग माई सिस्टर्स बन्स, स्टीलिंग देम, यू आर ए थीफ, रोड द पुलिसमैन, कम अलोंग टू द पुलिस स्टेशन। चलो तुम पुलिस स्टेशन बताते हैं। All three went to the police station. Mrs. Smith poured some magic water on their hands and the stickiness was washed away. After all, that stickiness जो चिपचिपाहट था ऐसा चला गया, washed away हो गया मतलब धो गया। वो मैजिक वाटर मीन्स कुछ लिक्विड ज़रूर होगा जिससे ये दोनों का हाथ जो एक साथ स्टक हो गए थे, जिस स्टिकीनेस जो था ये ख़त्म हो गया। ओके, लेट हिम स्पेंड ए नाइट, चलो एक रात तो ज़रूर इसको हवालात में बंद करके रखो। दैट वुड बी द पनिशमेंट, शी टोल्ड हर ब्रदर। आई विल टीच हिम ए लेसन, इट विल टीच हिम ए लेसन। इससे इसके ज़रूर कोई लेसन मिलेगा, फ्यूचर में कभी ये बॉन्स तो खाएगा नहीं, ना चोरी करेगा। ओके स्टूडेंट्स, हाउ डिड यू फील, कैसे लगा? मुझे लगता है यू हैव एंजॉयड टू मच, यू आर लाफिंग नाउ। मिसेस स्मिथ स्टिल पुट्स हर बॉन्स ऑन द विंडो स्टिल एवरी सैटरडे आफ्टरनून, बट मिस्टर ब्लैक डज नॉट कम नियर देम, नाउ ही डज नॉट लाइक बंस। अंगूर खट्टा है, ऐसा ही हुआ। इसके बाद तो मिस्टर ब्लैक कभी भी बांस चुराने भूल गया, ना उसे बांस अब पसंद भी आने लगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। ओके।